Hello and welcome. This is the third video of the chapter Word Games. Till now, we have learned some games that we can play using different letters and words. Let's continue and learn more games. The next game we are going to learn is known as Hidden Sentence. अभी तक हम लोगों ने कुछ गेम सीखा है जो हम लोग शब्दों और अक्षर से खेल सकते थे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एक गेम जिसका नाम है हिडन सेंटेंस। यू कैन प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर। अनलाइक अदर गेम्स, in this game you have to play with your partner, which means there are only 2 players. Okay, that's why it is said play with your partner. Take a pencil and paper. Like any other games, any other word games, you have to take a pencil and paper. Write down on it a hidden sentence. What we have to write? Hidden sentence. We have to write a sentence and there is a proper way to hide that sentence. Now see how you can hide your sentence. It is quite easy. वही वाक्य आप पेपर में लिखेंगे, लेकिन उसको किसी तरह से ढकना है। कैसे ढकना है ये सीखिए। Now you have to do this to add another letter at as many places as you like. आपका what will you do is you will add letters between words. आप एक वाक्य लिखेंगे, वो वाक्य में आप letters add करेंगे वो वाक्य को ढकने के लिए। I'll show you some example also. Now look at what is written below. It doesn't look like a sentence, but if you look closely you will see that an extra letter has crept in again and again. See if you can find that extra letter and see the hidden sentence. Look at this sentence. This one. Does this look like a sentence? इसको देखिए, क्या ये वाक्य जैसा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाक्य ही है। इसमें बीच बीच में कुछ कुछ लेटर्स ऐड करके कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। असली वाक्य कौन सा है? असली वाक्य है ये। You have to look very hard to find this sentence. You have to look very hard to find this sentence. Now if you look here carefully, Y-O-U, U के बीच में B लगा हुआ है। H-A-V-E, have के बीच में V लगा हुआ है। To, look, देखिए गैप में भी B लगा हुआ है। बीच में से B लगा के कंफ्यूजन के लिए और वाक्य को ढकने के लिए B का प्रयोग किया गया है। ओके, लाइक दिस वी कैन हाइड अ सेंटेंस एंड शो इट योर पार्टनर। अगर आपका पार्टनर को पता चल गया कि यहाँ पर एक्स्ट्रा B है और वो वाक्य ढूंढ लेता है, then he wins. When you have solved this puzzle, write down a hidden sentence of your own. Now it is the turn of your partner to find the hidden sentence. अगर आपका पार्टनर सेंटेंस ढूंढ लेता है तो फिर वो एक वाक्य बना के आपको देगा। सो जब आप वाक्य नहीं बना पाएंगे, ये पार्टनर विल विन। जब आपका पार्टनर वाक्य नहीं बना पाएगा तो आप जीतेंगे। ओके, सो इफ यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ द हिडन सेंटेंस, योर पार्टनर विल विन. If your partner cannot make a sentence out of the hidden sentence, then you will win. That like this we play hidden sentence. Okay, the next game we are going to learn is Minister's Cat. In the Minister's Cat, each player describes the Minister's Cat with one adjective. तो ये Minister Cat. अब यहाँ पर हम लोग मिनिस्टर कैट बोल के गेम खेलेंगे और मिनिस्टर का कैट, मंत्री का कैट को एक एग्जेक्टिव देंगे। फॉर एग्जाम्पल एंग्री कैट। अगर पहला प्लेयर एंग्री कैट बोलेगा तो दूसरा प्लेयर को ए के बाद क्या आता है? बी आता है। सो बी से कोई एग्जेक्टिव बनाना है।
Adjectives are word that describes noun and pronoun. Describing word बनाना है. For example, big cat. अब third player has to make another word. So the third player will make B के बाद C, clever cat. Fourth player ऐसे ही C के बाद D आता है. So dangerous cat. ऐसे बनाते बनाते जाना है. जो रुक जाएगा, that person will be out of the game. In this game, many person can play this game. ठीक है? Simple, Minister Cat. Next game we are going to learn is the spelling bee. Ab how we play this game? Let's learn. Okay? In the spelling bee, there are two teams. अब यहाँ पर दो प्लेयर नहीं, दो टीम हो गए. एक टीम में 2-3 आदमी बैठ के, two teams. It is played more or less in the same way as we play कबड्डी. कबड्डी जैसा ही हम लोग इसको खेलते हैं. जैसे कबड्डी में आपका टीम से एक आदमी जाएगा उसका टीम में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, और किसी को छू के आ गया तो आपका टीम को पॉइंट मिल गया. अगर उसको छू लिया, पकड़ लिया, दबोच लिया, तो फिर आपका टीम से एक आदमी गुम हो जाएगा. Like that only we play this game. Players of each side take turns asking the player of the opposite side the spelling of some chosen words. लेकिन इसमें आप शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से कबड्डी खेलेंगे. वन प्लेयर, अब आपका टीम का एक आप लोग डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने के बाद एक प्लेयर एक शब्द बताएगा. ठीक है? Players of each side takes turns asking player of the opposite side the spelling of some chosen words. किसी एक शब्द बताएगा, उसका स्पेलिंग पूछेगा. जैसे एक ने बताया अम्ब्रेला, तो दूसरा प्लेयर को अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताना है, UMBRELLA. ओके, वैसे स्पेलिंग पूछा जाएगा. इफ अ प्लेयर फेल्स, he is out of his team unless his questioner also fails to spell the word. एक टीम से, सपोज एक टीम में रवि है, रवि ने पूछा दूसरा टीम वाले को, दूसरा टीम का एक प्लेयर गौतम, गौतम ने आंसर देना है. सपोज आंसर गलत दिया तो वो टीम से आउट होगा. लेकिन रवि ने क्वेश्चन पूछा है, अगर रवि को भी स्पेलिंग नहीं पता तो रवि भी टीम से आउट होता है. तो वही स्पेलिंग पूछना है जो उसको याद है. ठीक है? तो वो स्पेलिंग पूछेगा दूसरा प्लेयर का. वो अगर आंसर दे पाएगा तो पॉइंट, आंसर नहीं दे पाएगा तो टीम से आउट. जैसे कबड्डी खेलते हैं वैसे ही. ओके, द टू टीम्स डिसाइड हाउ मेनी प्लेयर्स ईच साइड शैल हैव टू बिगिन विद. अब दो ही टीम के ऊपर निर्भर करता है कि कितना प्लेयर एक टीम में रहेगा. ठीक है? कोई स्पेसिफिक नहीं है. जितना प्लेयर एक टीम चाहे वो रख सकता है, 2, 3, 4, 5. तो दो टीम डिसाइड करके ये गेम खेला जाता है. ओके, इट्स वेरी सिंपल, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेनी गेम्स. नाउ देयर इज वन मोर गेम which you have to understand, which we will understand in the upcoming video. So thank you so much everyone for watching and have a great day.